السلام علیکم اہل عقل کے تمام سامعین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کے ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، ایک ایسی دھیمی آواز کے بارے میں جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے، وہ آواز جو شور نہیں کرتی مگر سچ بولتی ہے، وہ آواز جو بحث نہیں کرتی مگر انسان کو آئینہ دکھاتی ہے، وہ آواز جسے کبھی ہم ضمیر کہتے ہیں، کبھی اندرونی شعور اور کبھی وہ خاموش اشارہ جو انسان کو غلط اور صحیح کے درمیان فرق محسوس کراتا ہے۔ سنیں، ایک بات جو برسوں سے میرے اندر چبھ رہی ہے، کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب باہر سب کچھ ٹھیک دکھائی دیتا ہے، لوگ خوش ہیں، عقل بھی مطمئن ہے، پھر بھی اندر سے ایک دھیمی سی آواز کہتی ہے نہیں، یہ سچ نہیں۔ وہ آواز کس کی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوال ہی وہ دروازہ ہے جس کے آگے آج کی ساری گفتگو ہے، کیونکہ وہ آواز نہ خواہش ہے، نہ ڈر، نہ کوئی سبق جو باہر سے سیکھا ہو، وہ تمہارے اپنے اندر کی سب سے سچی پکار ہے۔ آؤ آج اسی کو پہچانتے ہیں، قرآن کی زبان میں اور اپنے دل کی زبان میں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھی ہو، نرم، دھیمی، بالکل واضح، بالکل ذاتی، جو آپ کو بتا رہی ہو کہ کوئی فیصلہ جو اب کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے، کوئی راستہ آپ کے لیے درست نہیں، کوئی بات سچ ہے یا جھوٹ؟ ایسی آواز جس نے خواہش سے جنم نہ لیا ہو، ڈر سے نہیں آئی، کسی نے باہر سے نہیں بھیجی، بس اندر سے اٹھی اور ہر دوسری آواز سے مختلف تھی۔ آج کی گفتگو اسی آواز کے بارے میں ہے، اور قرآن نے اس آواز کو ایک نام دیا ہے، وہ نام ہے محمد، یعنی وہ اندرونی عقل سلیم یا کامن سینس جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرے، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے یہ نام ہمیشہ ایک تاریخی شخصیت کے ساتھ جوڑ کر سیکھا ہے۔ 7ویں صدی، مکہ، وحی، ہجرت، یہ سب ذہن میں آتا ہے اور یہ فطری ہے، لیکن آج ہم اہل عقل نظریے کے ذریعے قرآن کے اندر سے ایک اور زاویہ دیکھیں گے جو لسانی بنیاد اور قرآنی جڑوں یعنی بنیادی الفاظ پر ہے، اور جو ہر انسان کی اپنی زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک قوم یا کسی ایک صدی تک محدود نہیں، بلکہ آج بھی ہر دور اور ہر انسان پر۔ سورہ محمد قرآن کا 47واں باب ہے، اور یہ باب 2 آیات سے شروع ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں، جیسے ایک آئینے میں 2 مختلف چہرے۔ پہلی آیت ایک ذہنی حالت بیان کرتی ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اللہ اعمالہم، جن لوگوں نے انکار کیا اور ضمیر کی راہ سے منہ موڑا، ان کے اعمال بے راہ ہو گئے۔ یہ آیت کسی مذہبی گروہ کے بارے میں نہیں ہے، اہل عقل نظریے کے مطابق یہ ایک ذہنی حالت کا بیان ہے، وہ ذہن جو اپنے ضمیر سے منہ موڑ لے، اپنی اندرونی سچائی کو رد کر دے، اس کے اعمال بے راہ ہو جاتے ہیں۔ وہ محنت کرتا رہتا ہے، سوچتا اور چلتا رہتا ہے، لیکن سمت کھو جاتی ہے۔ اور دوسری آیت اس کے بالکل برعکس ذہن کا بیان ہے، اور یہیں لفظ محمد یعنی عقل سلیم آتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا، اور وہ ان کے اپنے شعور کی گہرائی سے نکلنے والی حقیقت ہے، ان کی خرابیاں مٹا دی گئیں اور ان کے ذہن و حال کو درست کر دیا گیا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے جو پوری گفتگو کی بنیاد ہے اور جو بالکل سیدھا ہے۔ لفظ محمد اس آیت میں ایک مخصوص عربی شکل میں آتا ہے، ایک عام صفاتی اسم، کسی خاص شخص کا نام نہیں، اور اس کی جڑ حمد ہے جس کے معنی ہے پہچاننا، منظور کرنا، تصدیق کرنا۔ تو محمدن وہ باطنی صلاحیت ہے جو اندر سے آنے والی ہر بات کو پرکھے اور فیصلہ کرے، یہ سچ ہے، یہ نہیں۔ اور آیت خود کہتی ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ حقیقت ان کے اپنے شعور کی گہرائی سے نکلتی ہے، باہر سے نہیں آتی، بلکہ اپنے ہی اندر یعنی سوچ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ایک بات جو شروع میں ہی واضح ہونی چاہیے، یہ محمد یعنی عقل سلیم کی صلاحیت کسی ایک قوم، ایک زبان یا ایک دور کے لیے نہیں ہے۔ قرآن خود اسے آفاقی قرار دیتا ہے، رحمتاً للعالمین، یعنی تمام جاننے والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے نہیں، اور نہ ہی کسی ایک صدی کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اور یہی اہل عقل نظریے کی سب سے اہم بنیادوں میں سے ایک ہے، اور یہ بات قرآن نے ایک جگہ نہیں بار بار کہی ہے، اور ہر بار ایک ہی نقطے کو واضح کیا ہے کہ یہ رسول، یہ نبی
ये अंदरूनी पैगंबर हमारे नफ्स यानी नफ्सियात ही के अंदर है, ये कोई बाहर से नहीं आता। गौर करें इन आयात पर, ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत सबूत देती हैं कि जिसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। सूरा अल बकरा आयत नंबर 129, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब उनके अंदर से उनमें से एक रसूल भेज। सूरा अल बकरा आयत नंबर 151, खमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि हमने तुम्हारे अंदर से तुम में से रसूल भेजा। सूरा आले इमरान आयत नंबर 101, व कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु, और तुम इनकार कैसे करते हो जबकि तुम में अल्लाह यानी ज़मीर का रसूल मौजूद है। सूरा आले इमरान आयत नंबर 164, लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तर्जुमा, अल्लाह यानी ज़मीर ने एहसान किया जब उनके नफूस में से उनमें रसूल भेजा। सूरा अल मुमिनून आयत नंबर 32, व अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, और हमने उनके अंदर से उनमें से रसूल भेजा। देखें किस तरह कुरान बार बार कहता है मिनहुम, मिनकुम, मिन अनफुसिहिम, उनमें से, तुम में से, उनके अपने नुफूस में से। ये रसूल बाहर से नहीं आता, ये इंसान के अंदर उसके अपने जहन, उसकी अपनी सोच यानी अपनी नफ्सियात में से ही उठता है। ये तुम्हारा अपना है और इसी को अहले अक्ल नजरिया मोहम्मद इनकी बातिनी सलाहियत कहता है। आइए अब इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर लाते हैं। हर इंसान के अंदर बेशुमार आवाजें हैं। ख्वाहिश की आवाज जो लोगों की देखा देखी कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। डर की आवाज जो कहती ऐसा क्या तो ये होगा या वो होगा। गुरूर की आवाज जो कहती है मैं सबसे ऊपर हूँ। पुरानी यादों की आवाज जो गुजरे हुए तजर्बात दोहराती रहती है। दूसरों की राय की आवाज जो कहती है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे वगैरह। आदत से मजबूरी की आवाज वगैरह। और ये सब आवाजें एक ऐसी आवाज में बोलती हैं जो कि हमारे एहसास में हमारी अपनी जबान है, हमें उसकी समझ आती हैं, हमें कायल करती हैं। लेकिन उन सब के दरमियान एक और आवाज भी है जो उन सब से मुख्तलिफ है। वो ना तो ख्वाहिश से आती है, ना डर से, ना आदत से, ना किसी की राय से, बल्कि तुम्हारे बिलगैब यानी बातिन की उस गहराई से आती है जहां तुम्हारा कोई जाती मफाद नहीं होता। वो बस कहती है ये सच है या ये झूठ है, यानी हक और बातिल में तमीज सिखाने वाली आवाज। और जब वो बोलती है तो इंसान उसे पहचानता है क्योंकि उसका लहजा बाकी सबसे मुख्तलिफ होता है। यही मोहम्मद यानी अक्ल सलीम की आवाज है। और कुरान इस आवाज के बारे में एक ऐसी बात कहता है जो पहली बार सुनकर चौंकाती है। सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 6, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी यानी अंदरूनी रहनुमा मोमिनों के अपने नुफूस से भी ज्यादा करीब है। ये आयत सोचने वाली है। नबी यानी ये अंदरूनी रहनुमा या ये अंदरूनी आवाज तुम्हारे अपने नफ्स यानी नफ्सियात से भी ज्यादा करीब है। यानी ये तुमसे बाहर नहीं, ये तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हारी सबसे गहरी परत है, तुम्हारा सबसे जाती रिश्ता। इसीलिए कुरान कहता है अल्लाह और रसूल की इताअत करो, यानी अपने ज़मीर को सुनो और उस आवाज को मानो जो उसे तुम तक पहुंचाती है। और कुरान ने मजीद एक जगह इस हकीकत को बयान किया है उन लोगों की मिसाल देते हुए जिन्हें ये अंदरूनी रहनुमा भेजे गए। सूरा अज़्ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 6, वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन, और हमने पहले लोगों में कितने ही नबी यानी अंदरूनी रहनुमा भेजे। हर दौर में, हर कौम में अंदरूनी रहनुमा भेजे गए। ये कोई एक वाकया नहीं था जो एक बार हुआ और खत्म हो गया। ये एक मुस्तकिल जारी आफाकी अमल है जो हर इंसान के अंदर हर लम्हा जारी है। अब वो सवाल जो हर इंसान के जहन में आता है, अगर ये सलाहियत सबके अंदर है तो फिर इतने लोग भटकते क्यों हैं? इतने गलत फैसले, इतनी खुद फरेबी, इतना इंतशार, ये सब कहाँ से आता है? इस सूरा यानी सूरा मोहम्मद की पहली आयत इसी का जवाब है। जब मोहम्मद यानी अक्ल सलीम की सलाहियत दब जाए,
जब ज़मीर की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाए तो जहन चलता तो रहता है, लेकिन उसके पास कोई सच्चा मेयार नहीं रहता जो बाकी आवाज़ों को परखे। तब ख्वाहिश सच्चाई बन जाती है, डर यकीन बन जाता है, उधार अकीदा अपनी सोच बन जाता है। इंसान सरगर्म रहता है लेकिन अंदर से बेरास्ता। और कुरान एक आयत में बिल्कुल वाज़ेह करता है कि ये अंदरूनी रसूल, ये मोहम्मद की सलाहियत खुद मुख्तार है, वो तुम्हारी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं है। सूरा अल हुजरात आयत नंबर 7। वालमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिन अल अम्रि लअनितुम। जान लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह यानी ज़मीर का रसूल है। अगर वो बहुत से मामलात में तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे चले तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। ये आयत गौर से सुने। तुम्हारे अंदर रसूल मौजूद है और वो तुम्हारी हर ख्वाहिश के पीछे नहीं चलता। अगर चलने लगे तो तुम नुकसान में पड़ जाओ। यानी मोहम्मद की अंदरूनी सलाहियत बिल्कुल आज़ाद है, ख्वाहिश से आज़ाद, डर से आज़ाद, आदत से आज़ाद। वो सिर्फ सच्चाई की तरफ इशारा करती है। और एक और आयत जो इस हकीकत को मुकम्मल करती है, सूरा यूनुस आयत नंबर 16। कुल लौ शा अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिथ्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून। अगर अल्लाह यानी ज़मीर चाहता तो मैं उसे तुम पर न पड़ता, मैं तुम में एक उम्र गुजार चुका हूँ इससे पहले, क्या तुम अकल नहीं रखते? ये आयत एक गहरा नफ्सियाती नुक्ता बयान करती है। ये आवाज़, ये मोहम्मदिन की सलाहियत अचानक बाहर से नहीं आई, वो हमेशा से अंदर थी, और जब ज़मीर की गहराई से उतरी तो वही बात कही जो हमेशा से सच थी। तुम अकल नहीं रखते, यानी क्या तुम अपने अंदर नहीं देखते? अब सबसे अहम सवाल, ये सलाहियत जागती कैसे है? और यहाँ कुरान और अहले अक्ल नजरिया एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत सू को हैरान करती है। मोहम्मद यानी अक्ल सलीम सुकून में नहीं जागता, ये इंतशार में पैदा होता है। ये आवाज उस वक्त नहीं उठती जब सब ठीक हो, ये उस वक्त उठती है जब पुराने जवाब नाकाफी हो जाएं, जब अंदर से कोई चीज कहे कि कुछ मेल नहीं खा रहा। इसी कश्मकश के अंधेरे में मोहम्मद की आवाज पहली बार साफ सुनाई देती है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 3 शर्तें बताती है। जमीर पर भरोसा, अंदर की तकसीम यानी दोई मिटाने की कोशिश, और अपनी अंदरूनी रहनुमाई पर एतमाद। जब ये तीनों हों तो वहुवल हक्कु मिन रब्बिहिम, हकीकत खुद तुम्हारे अंदर यानी बातिन से जाहिर होती है। कुरान ने ये भी बताया है कि जब ये अंदरूनी रसूल आए तो वो कोई नई बात नहीं लाता, उस चीज की तस्दीक करता है जो पहले से इंसान के अंदर मौजूद थी। सूरा आले इमरान आयत नंबर 81। वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ अन्नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा थुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। जब अल्लाह यानी ज़मीर ने नबियों यानी अंदरूनी रहनुमाओं से अहद लिया, जो कुछ मैंने तुम्हें किताब यानी अंदरूनी सहीफ़ा और हिकमत दी, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए जो तुम्हारे पास जो है उसे सच ठहराए, तो तुम उस पर जरूर ईमान लाना। ये आयत एक गहरी हकीकत बयान करती है। पहले इंसान के अंदर नबियों यानी अंदरूनी रहनुमाओं को किताब यानी अंदरूनी सहीफा और हिकमत दी गई, यानी इंसान के अंदर पहले से एक अंदरूनी किताब यानी पैदाइशी नविश्ता मौजूद है जो कि एक फितरी हिकमत है। और फिर मोहम्मदिन आता है, वो रसूल जो उन सब की तस्दीक करे, उन्हें मंजूर करे, उन्हें हतमी शक्ल दे। मोहम्मदिन नई बात नहीं लाता, वो अंदर जो पहले से है उसकी तस्दीक करता और उसे सच ठहराता है। और इसीलिए कुरान में मोहम्मदिन को खातमुन नबिय्यीन, नबियों की मुहर कहा गया है। सूरा अल अहज़ाब आयत नंबर 40। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, बल्कि अल्लाह यानी ज़मीर का रसूल और नबियों यानी अंदरूनी रहनुमाओं की मुहर है। खातमुन नबिय्यीन अहले अक्ल नजरिए के मुताबिक वो अंदरूनी सलाहियत जो तमाम अंदरूनी आवाज़ों, तमाम अंदरूनी रहनुमाइयों को हतमी मंजूरी दे और जो उन सब की तस्दीक करे और उन्हें मुकम्मल करे। कुरान ये भी कहता है कि ये अमल पहले लोगों में भी जारी था। सूरा अस्साफ़ात आयत नंबर 72। वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुंदिरीन, और हमने उनके अंदर खबरदार करने वाले भेजे। हर दौर में खबरदार करने वाले भेजे गए। वो आवाज़ें जो ज़मीर से उठती हैं और कहती हैं
रुको, ये रास्ता नहीं। और मोहम्मद उन्हीं आवाजों की तस्दीक करता है, उन्हें परखता है, मंजूर करता है, अंदरूनी कुरान की हतमी मेहर लगाता है। जब मोहम्मद यानी अक्ल सलीम की सलाहियत बेदार हो तो आयत सूरा मोहम्मद आयत नंबर 2 नतीजे बयान करती है, और ये दोनों नतीजे नफ्सियाती नौयत के हैं, मजहबी नहीं। पहला नतीजा, खफ़्फ़र अन्हुम सय्यआतिहिम, उनकी खराबियों को मिटा दिया गया। खुद फरेबी सिर्फ अंधेरे में जिंदा रहती है। जब ज़मीर की आवाज़ बोलने लगे मोहम्मद के जरिए, तो वो चीज़ें जो झूठी थीं, जो बेबुनियाद थीं, अपनी गिरफ्त खोने लगती हैं। ये सिर्फ अखलाकी इस्लाह नहीं, ये नफ्सियाती सफाई है। और दूसरा नतीजा, अस्लह बालहुम, और उनके ज़हनो हाल को दुरुस्त कर दिया। बिखरा हुआ मुंतशिर जहन इकट्ठा और मुनज़्ज़म होने लगता है, और हर सोच बातरतीब होने लगती है। तकसीम शुदा नफ्स यानी नफ्सियात एक मरकज के गिर्द जमा होने लगता है। सोच, नीयत और अमल एक ही समत में आने लगते हैं। लफ्ज बाल जो जहन, हाल और कैफियत को जाहिर करता है, ये बताता है कि ये इस्लाह ज़ाहिरी नहीं बल्कि बुलगैब में ही मुकम्मल अंदरूनी यानी बातिनी है, और ये पूरी कैफियत जहन तब्दील कर देती है। अब मैं एक ऐसी बात पर आना चाहता हूं जो शायद आज की पूरी गुफ्तगू का सबसे चौंका देने वाला लम्हा है। हम सब ने एक जुमला हजारों बार सुना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मोहम्मद का नाम आए, ये जुमला फौरी तौर पर आता है। रिवायती तर्जुमा है, अल्लाह यानी ज़मीर की रहमत हो उस पर और सलाम हो। और हम ये किसी गुजरे हुए शख्स के लिए कहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद पहले कभी जहन में ना आया हो। एक मुर्दा शख्स को जो 1400 साल पहले गुजर गया, जिनका काम मुकम्मल हो चुका, हर रोज हर लम्हे करोड़ों लोगों की मुसलसल दुआओं और रहमत की क्या जरूरत है? ये सवाल बेअदबी नहीं, ये एक सच्चा ईमानदार सवाल है जो अक्ल पूछती है। और अहले अक्ल नजरिए का जवाब ये है, क्योंकि मुहम्मदिन यानी अक्ल सलीम कोई मुर्दा शख्स नहीं है। मुहम्मदिन एक जिंदा अंदरूनी सलाहियत है जो हर इंसान के अंदर है, और जो मर सकती है, दब सकती है, खामोश हो सकती है। तो ये दुआ किसी और के लिए नहीं है, ये दुआ हम अपने लिए मांग रहे होते हैं, अपने अंदर के मुहम्मदिन के लिए। हम कह रहे होते हैं, ए ज़मीर, ए मेरे शऊर की गहरी असल, मेरे अंदर के मोहम्मद पर अपनी रहमत रखना। इस आवाज़ को जिंदा रखना जो सच्चाई बताती है। इसे दुनिया के शोर में खोने मत देना, इसे उधार अकीदों के बोझ तले दबने मत देना। ये नर्म, वाज़ेह, गहरी आवाज़ जो मेरे अंदर है, अल्लाह यानी ज़मीर की रहमत हो उस पर और सलाम हो, यानी वो सालिम रहे, महफूज रहे, बेदार रहे, सच्चाई से जुड़ी रहे। और इस समझ को मुकम्मल करने के लिए आखिरी आयत जो अहले अक्ल नजरिया इस पूरी गुफ्तगू के लिए बयान करता है, सूरा उत-तौबा आयत नंबर 128, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुन रहीम। तुम्हारे पास तुम्हारे अपने नफूस में से एक रसूल आया, तुम्हारी तकलीफ उसे बहुत भारी लगती है, वो तुम्हारी भलाई का बहुत हरीस है, ईमान वालों के लिए नरम दिल और मेहरबान है। तुम्हारे अपने नफूस में से, तुम्हारी तकलीफ पर बेचैन होने वाला, तुम्हारी भलाई का हरीस, नरम दिल, मेहरबान। ये कोई बाहर का शख्स नहीं, ये तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारी खैर चाहती है, हमेशा सच्चाई की तरफ इशारा करती है। इसी का नाम मोहम्मद है, और इसी के लिए हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आज हमने 15 कुरानी आयात देखी और उन सब ने मिलकर एक ही बात कही, मुहम्मद यानी अक्ल सलीम एक तारीखी शख्स का नाम नहीं, ये एक जिंदा अंदरूनी सलाहियत का नाम है। वो आवाज़ जो ख्वाहिश से नहीं, डर से नहीं, आदत से नहीं, बल्कि ज़मीर की गहराई से उठती है और कहती है, ये सच है। वो आवाज़ तुम्हारे अंदर है, हमेशा से है, इसे ढूंढना नहीं, बस सुनना है। और अगली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, एक लम्हे के लिए रुकें और ये महसूस करें कि ये दुआ किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए है, अपने अंदर के उस मुहम्मदिन के लिए जो अभी भी वहां है, इंतजार में कि कोई तो सुने। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी।
اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اہل عقل کے ساتھ جڑے رہیے، سوچتے رہیے، سوال کرتے رہیے اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر کی سچی آواز کو سنتے رہیے۔